یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ گھر محل جیسا ہو یا چھوٹا سا بسیرا، رشتہ داروں سے بھرا ہو یا تنہائی کا ٹھکانہ، گھر تو گھر ہوتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ البتہ آج کا سچا قصہ شاید آپ کو بستر کے نیچے یا الماری کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا پتہ وہاں کوئی مانسٹر چھپ کر بیٹھا ہو۔ یہ ہے کوری پارکر کی کہانی۔ راچیسٹر، نیو یارک۔ کوری لن پارکر کی پیدائش 15 اگست 1973 کو ہوئی تھی۔ کمبرلی نامی بیٹی کے بعد کوری والدین بروس اور لز کی دوسری بیٹی تھی۔ کوری بچپن سے ہی پھرتیلی اور ایکٹیو تھی۔ اسے اسپورٹس اور سوئمنگ کا شوق تھا۔ وہ اسکول اور محلے میں آسانی سے دوست بنا لیتی تھی۔ اسے جانوروں سے بھی بہت پیار تھا۔ سن 1991 میں برائٹن ہائی اسکول سے گریجویٹ ہونے کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی تھی۔ سپٹمبر 1998 25 سالہ کوری نے امریکی ریاست فلوریڈا میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ نیو یارک کی سردیوں سے تنگ آ چکی تھی، جہاں درجہ حرارت -10 -20 کو چھو لیتا تھا۔ کوری کو سورج، گرم موسم، سمندر اور ساحل سے محبت تھی۔ جیکسن ویل بیچ اس کے لیے بہترین جگہ تھی۔ کوری بہت خود مختار تھی اور اس نے جیکسن ویل بیچ پہنچتے ہی 4th اسٹریٹ اور 15th ایونیو نارتھ پر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ پھر اس نے کمیونٹی کالج میں داخلہ لے لیا اور ریگ ٹائم ٹیورن نامی ریسٹورانٹ میں پارٹ ٹائم ویٹریس کا کام شروع کر دیا۔ وہ ساحل سمندر پر اپنا فارغ وقت گزارتی تھی۔ اس کی دلکش کرزمیٹک شخصیت سے بہت سارے لوگ متاثر تھے۔ جلد اس کے دوستوں کا ایک بڑا گروپ بن گیا تھا۔ کوری 5 فٹ 11 انچ لمبی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھی۔ اس کے جاننے والوں کا کہنا تھا کہ کوری جہاں بھی جاتی اکثر لڑکے اس پر فدا ہو جاتے۔ ان کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی کہ فلوریڈا منتقل ہونے کے چند ہفتوں بعد ہی کوری کا تعلق ڈیوڈ ویلٹ نامی لڑکے سے جڑ گیا تھا۔ نومبر 1998 امریکی تھینکس گیونگ کے موقع پر کوری کے والدین نے اسے لاکھ گھر بلایا، لیکن فلوریڈا سے نیو یارک کا سفر گاڑی سے 18 گھنٹے لمبا تھا اور اس کے پاس فلائٹ پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو کوری نے جاب کا بہانہ کیا، کہا میں نے ریگ ٹائم میں ایکسٹرا شفٹ پکڑ لی ہے، تھینکس گیونگ دوستوں کے ساتھ گزار لوں گی۔ کوری کی ایک سہیلی نے اورفن تھینکس گیونگ نام سے پاٹ لک ڈنر کی دعوت دی ان سارے دوستوں کو جو اپنے خاندان والوں سے دور تھے۔ 25 نومبر 1998 بدھ یعنی وینسڈے کی شام کوری نے اگلے دن کے پاٹ لک ڈنر کے لیے میٹھا بنا کر فریج میں رکھا اور دی رٹز نامی بار میں دوستوں سے ملنے گئی۔ انہوں نے کھایا پیا اور رات کے 1:30 بجے کے قریب، کیونکہ وہ تھک چکی تھی، کوری نے گھر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ تصویر اسی رات کسی دوست نے کھینچی تھی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کوری کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اگلے روز 26 نومبر جمعرات یعنی تھرسڈے کے دن تھینکس گیونگ ڈنر پر دوستوں نے کوری کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کے گھر فون کیا گیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ ہر کوئی جاننے والا اپنی زندگی میں مشغول تھا۔ سب نے سوچا شاید کوری اپنے بوائے فرینڈ کے گھر چلی گئی ہوگی یا کسی مصروفیات کی وجہ سے پاٹ لک کے بارے میں بھول گئی ہوگی۔ 27 نومبر جمعے کی صبح
کھوری اپنی شفٹ کے لیے نہیں پہنچی۔ اس کے باس کو حیرانگی ہوئی، وہ ایک بہت ذمہ دار لڑکی تھی۔ ریگ ٹائم کے ایک باورچی کو کھوری کی خیریت پوچھنے اس کے گھر بھیجا گیا۔ کھوری گراؤنڈ فلور اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ باورچی نے غور کیا کہ دروازہ لاک تھا۔ اس نے کافی دیر تک دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ آدمی بلڈنگ کے سائڈ پر گیا اور کمرے کی کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ بلائنڈز کے درمیان چھوٹی سان کے ذریعے اسے کھوری کی ٹانگ نظر آئی۔ ٹانگ پر سوکھا ہوا خون دکھائی دیا۔ آدمی نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا۔ ڈیٹیکٹیوز جب کھوری کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک ایسا ہولناک کرائم سین کا منظر ملا جسے دیکھ کر تجربے کار ایکسپیرینسڈ پولیس افسران بدحواس اور ڈسٹربڈ ہو گئے۔ کھوری کو ذبح یعنی سلاٹر کیا گیا تھا۔ اس کی گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹی ہوئی تھی۔ اس کی ننگی لاش پر بے شمار چاقو کے زخم تھے۔ اس کی موت بہت ہی اذیت ناک تھی۔ بستر خون سے لال ہوا تھا۔ کھوری کے جسم پر دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ انویسٹیگیٹر سارجنٹ بلی کارلائل کو یہ کیس سپرد کیا گیا۔ کرائم سین پر موجود فورینسک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کیتھرین گرامزلینڈ نے اس قتل کو اوور کل قرار دیا، یعنی ضرورت سے زیادہ چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ اوور کل عموماً اس کیس میں دیکھا جاتا ہے جہاں قاتل اپنی وکٹم کو جانتا ہے، وہ وکٹم سے بے تحاشا نفرت کرتا ہے، انتہائی غصے کی حالت میں بے قابو ہو کر وہ لگاتار حملہ کرتا ہے اور جب تک وہ تھکتا نہیں ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ قاتل نے کھوری کی لاش کو سیکشولی سجسٹیو پوز میں دیوار سے ٹیکا دے کر بستر پر بٹھایا تھا۔ اس کی ٹانگیں جان بوجھ کر کھلی چھوڑی گئی تھیں۔ کھوری کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں چند بال الجھے ہوئے تھے، ایک بال کی جڑ ثابت تھی۔ حملے کے دوران کھوری نے قاتل کے سر کے بال نوچ لیے تھے۔ کھوری نے 2 دن پہلے جو کپڑے دی ریٹس میں پہنے تھے وہ اس کے بستر کے کونے میں سلیقے سے طے ہوئے رکھے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز کا خیال تھا کہ قاتل کھوری کے سونے کے بعد گھر میں داخل ہوا تھا یا وہ اس کے گھر آنے سے پہلے وہاں موجود تھا، اپارٹمنٹ کے کلازٹ میں چھپ کر کھوری کا انتظار کر رہا تھا۔ کھوری کے کمرے کے قالین پر ایک گولڈن زپو لائٹر ملا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی سگریٹ پی لیتی تھی لیکن یہ لائٹر اس کا نہیں تھا۔ غور کیا گیا کہ اپارٹمنٹ میں کچھ بھی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا تھا، دروازے کا تالا توڑا نہیں گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کو کچن میں سنک کے پاس ایک خون کا نشان ملا۔ کچن کی کھڑکی میں اندر کی طرف اور باہر کی طرف خون کے دھبے تھے جن سے ظاہر ہوا کہ قاتل اپارٹمنٹ میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہوا تھا اور وہیں سے فرار بھی ہوا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ استعمال نہیں کیا کیونکہ وہاں بہت روشنی تھی۔ زپو لائٹر، خون کے سیمپلز اور بال فورینسک ٹیسٹنگ کے لیے محفوظ کیے گئے۔ کھوری کی لاش سٹی مورگ بھیجی گئی۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ اسے 101 بار چاقو مارا گیا تھا، 101 چاقو کے زخم جن میں سے 54 کھوری کے مرنے کے بعد کیے گئے تھے۔ اس کی لاش پر دفاعی زخم نے ثابت کیا کہ کھوری نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس نے چاقو کے ایک وار کو اپنے گھٹنے سے روکنا چاہا تھا۔ اس نے بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ سے چاقو پکڑنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ پر گہرا زخم تھا۔ جان لیوا وار گردن پر کیا گیا تھا جس سے کھوری کی 2 آرٹریز کٹ گئی تھی اور خون ضائع ہونے پر وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد قاتل نے بار بار کھوری کی لاش پر اس کے پیٹ اور چہرے پر چاقو گھونپا تھا۔ اگرچہ کھوری کی لاش دیکھ کر ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے ریپ کیا گیا تھا، آٹوپسی سے ظاہر ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے کھوری کے دوستوں اور اس کے کلیگ سے پوچھ گچھ کر کے اپنی تفتیش شروع کی۔ سب سے پہلے کھوری کے بوائے فرینڈ ڈیوڈ ویلٹ کو تھانے بلایا گیا۔ اس نے پولیس افسران کو بتایا کہ وہ کھوری کو صرف
3 हफ्तों से जानता था। कोरी के कत्ल के वक्त वो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग मना रहा था। उसने पुलिस को सबूत के तौर पर अपना प्लेन का टिकट दिखाया, डिनर पर फैमिली के साथ खींची हुई तस्वीरें भी दी। डेविड विल्ट का एलिबाई बिल्कुल सॉलिड था, वो सच कह रहा था। इसके बाद एक नया सस्पेक्ट सामने आया। कोरी के साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाली टिफनी जिएंटा और एक दोस्त एमी डडली ने पुलिस को एक लड़के का नाम दिया, एरिक जोन्स। एरिक जोन्स रैग टाइम में बर्तन धोने का काम करता था। वो कोरी से ऑब्सेस्ड था, उसे डेट करना चाहता था, लेकिन कोरी बार बार इनकार कर देती थी। एरिक फिर भी बहाने से कोरी को लगातार फ़ोन करता रहता था। अच्छी मूवी थिएटर में लगी है, चलोगी? मैंने मज़े का खाना बनाया है, डिनर पर आ जाओगी? कोरी उसकी इन हरकतों से बेजार थी। एरिक जोन्स को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शुरू से ही उसका इंटरव्यू अजीब व गरीब था। उसने खुद से बताया कि उसके मेंटल इश्यूज के मसले थे, उसे रेप और कत्ल के ख्यालात आते थे, लेकिन वो इन फैंटेसीज पर कभी अमल नहीं करता था। एरिक ने बड़े धड़ल्ले से कोरी से प्यार करने का दावा किया। और तो और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा, अगर तुम्हें कोरी को कत्ल करने का मौका मिलता तो तुम क्या करते? एरिक ने बिला झिझक कहा, मैं सबसे पहले उसका गला काट देता ताकि वो चीख कर मदद न मांग सके। अगर आपको याद है, कोरी का गला काटा गया था। जल्द फोरेंसिक टेस्ट रिजल्ट्स वापस आ गए। गोल्डन लाइटर से कोई मदद हासिल नहीं हुई, उस पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। अपार्टमेंट में पाया गया खून ज्यादातर कोरी का था, लेकिन किचन सिंक के करीब खून का सैंपल और कोरी की उंगलियों में फंसे हुए बाल कातिल के थे। पुलिस ने नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस में डीएनए का मैच ढूंढा, मगर नहीं मिला, जिसका मतलब था कि कातिल पहले कभी पकड़ा नहीं गया था। एरिक जोन्स का डीएनए टेस्ट किया गया। उसका डीएनए कातिल के डीएनए से मिलता नहीं था। एरिक जोन्स के वकील ने साबित किया कि वो जहनी मरीज था और जब वो अपनी दवाएं लेना भूल जाता था तो वो बहकी बहकी बातें करता था। एरिक जोन्स को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने अपनी तफ्तीश का रुख उस शख्स की तरफ मोड़ा जिसने आखिरी बार कोरी को द रिट्स में देखा था। वो टिफनी जिएंटा थी। टिफनी से तफसीली पूछगछ की गई। टिफनी ने पुलिस से कहा, हम दोनों एक ही वक्त पर द रिट्स से निकले थे। गुड नाइट कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठी, मैं अपनी गाड़ी में, और हमने अपने अपने घर का रुख इख्तियार कर लिया था। उसके बाद मैंने कोरी को ना देखा न उससे बात की। मगर टिफनी के दोस्तों ने पुलिस को एक मुख्तलिफ बिल्कुल अलग बयान दिया था। दोस्तों ने कहा कि टिफनी ने उनको बताया था कि उसने कोरी को 2 बजे फ़ोन किया था। कोरी ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं सो रही हूँ। टिफनी ने दोस्तों से ये भी कहा था कि वो 4 बजे के करीब कोरी के घर गई थी, लेकिन कोरी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और तो और टिफनी हर किसी सुनने वाले को कोरी के कत्ल और क्राइम सीन की तफसीलात दे रही थी। उसके पास वो डिटेल्स थीं जिन्हें मीडिया और पब्लिक में आम नहीं किया गया था। क्या ये मुमकिन था कि कोरी की पक्की दोस्त उसकी दुश्मन थी और उसने जलन और हसद की वजह से उसे मार डाला हो? पुलिस ने टिफनी के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके फ़ोन से कोरी को उस रात कोई कॉल्स नहीं किए गए थे। टिफनी झूठ क्यों बोल रही थी? डिटेक्टिव्स ने उसका डीएनए मांगा। टिफनी ने कहा, मेरा कोरी के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं डीएनए नहीं दूंगी। अब तो पुलिस को वाकई यकीन हो गया था कि टिफनी कुछ छुपा रही थी। लेकिन जब कातिल के खून की मज़ीद टेस्टिंग की गई, एक अहम तफसील सामने आई। डीएनए में वाई क्रोमोसोम मौजूद था। वाई क्रोमोसोम सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। डिटेक्टिव्स टिफनी को छोड़ने पर मजबूर हो गए। सार्जेंट बिली कार्लाइल का मानना था कि टिफनी तवज्जो की भूखी थी। उसे लोगों से काफ़ी अटेंशन मिल रही थी। वो एक वायलेंट मर्डर विक्टिम की जो दोस्त थी।
जल्द पुलिस को मालूम हुआ कि टिफ़नी एम्बुलेंस में काम करने वाले एक पैरामेडिक की कज़न थी। उसी ने कत्ल की सारी सनसनी तफसीलात टिफ़नी को दी थी। 12 दिसंबर 1998 कोरी के चाहने वाले रॉचेस्टर के आवर लेडी क्वीन ऑफ पीस चर्च में उसे अलविदा कहने जमा हुए। उसकी फैमिली ने फ्यूनरल सर्विस में शिरकत करने वालों से दरख्वास्त की कि वो फूलों पर पैसा खर्च ना करें, बल्कि जानवरों पर जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले इदारे ह्यूमेन सोसाइटी को डोनेशंस दे। दिसंबर के बाद जनवरी का महीना आया और चला भी गया। देखते देखते कोरी के कत्ल को कई हफ्ते गुजर गए, पर मुजरिम नहीं मिला। और फिर एक दिन छोटी उम्मीद की किरण जागी। कोरी की एक बूढ़ी पड़ोसन ने पुलिस से राब्ता किया। खातून ने कहा, पता नहीं मैं जो बताने वाली हूँ उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, मगर कोरी की मौत से कुछ दिन पहले मैं घर लौट रही थी कि मैंने एक शख्स देखा जो कोरी के अपार्टमेंट की खिड़कियों में झांक रहा था। अगले दिन मैंने कोरी को इस बात की खबर दी और कहा, हनी होशियार रहना, दरवाज़ा हर वक्त लॉक करके रखना। पड़ोसन ने उस शख्स का हुलिया बताया, लेकिन उस आदमी की शिनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और मजीद 38 मर्दों का DNA टेस्ट किया गया, जिनमें कोरी के दोस्त, फेलो स्टूडेंट्स और रैग टाइम में काम करने वाले आदमी थे। अफसोस कि किसी का भी DNA कातिल के DNA से मैच नहीं हुआ। महीने गुजर गए। अब तो कोरी की फैमिली को डर था कि उनकी बेटी का बेरहम कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कोरी की मौत के 18 महीने बाद पुलिस ने एक नई अपील जारी की और ऐलान किया कि कोरी के बाप ने $20,000 का इनाम रखा है उस शख्स के लिए जो कोरी के कत्ल के मुताल्लिक कोई नई इंफॉर्मेशन सामने लेकर आएगा। इस केस में नए सिरे से दिलचस्पी ली गई। लोगों ने बीते हुए वक्त पर गौर किया और फिर एक दिन जूलिया सेडविक नामी औरत सामने आई। जूलिया और उसके 2 दोस्त बारबेक्यू लिमिटेड नामी रेस्टोरेंट में काम करते थे और उन्हें याद आया कि कोरी के मर्डर के एक दिन बाद उनके साथ काम करने वाला एक लड़का बहुत ही बेचैन और घबराया हुआ नजर आ रहा था। जूलिया ने डिटेक्टिव से कहा, उस दिन रॉबर्ट डेनी बात बात पर रो रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे। वो इधर उधर सिगरेट पीते हुए बदहवास फिर रहा था। हमने उससे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा कि उसका बेटा टेक्सास के किसी शहर में गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गया है और उसे वहां जल्द जाना होगा। रॉबर्ट ने अगले दिन नौकरी पर इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़ दी। हम सब ने उसके लिए चंदा जमा किया और पैसे देने उसके घर गए। रॉबर्ट अपनी बहन के साथ रहता था। बहन ने कहा, रॉबर्ट घर पर नहीं है, लेकिन उसका कोई बच्चा भी नहीं है, वो खुद 17 साल का है। जूलिया ने सार्जेंट बिली कार्लाइल को बताया कि रॉबर्ट की बहन उसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी जिसमें कोरी का अपार्टमेंट था। रॉबर्ट की बहन शेली वेस्ट को इंटरव्यू किया गया। उसने कहा, रॉबर्ट अब मैरीलैंड में कहीं रहता है। मैंने उसे घर से निकाल दिया था। वो सारी रात बेहुदा मूवीज, पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देखता था। अक्सर खिड़की में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता था। कई बार रात में मेरी आंख खुली और रॉबर्ट मेरे बिस्तर के सामने मुझे घूरते हुए खड़ा हुआ होता था। शेली ने एक और परेशान कुन बात का इंकशाफ किया। शेली और रॉबर्ट डेनी का एक बड़ा भाई था, पैट्रिक डेनी, जो टेक्सास में एक औरत के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट रहा था। उसने अपनी विक्टिम को 97 बार छुरा घोंपा था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कोरी को 101 बार वार किया गया था। क्या ये अजीब बात नहीं थी कि एक ही खानदान के 2 नौजवान लड़के, 2 भाई एक ही तरह के कत्ल में मुलविस थे? क्या ये मुमकिन था कि बड़े भाई से मुतासिर होके रॉबर्ट ने अपने भाई से 2 हाथ आगे बढ़ने का सोचा था?
सार्जेंट बिली कार्लाइल और डिटेक्टिव्स 900 मील का सफ़र तय करके फ्लोरिडा से मैरीलैंड पहुंचते हैं। रॉबर्ट डेनी अब 19 साल का था और वो एक कंप्यूटर की दुकान में काम करता था। अफसरान उसे ढूंढ निकालते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रॉबर्ट से कोरी पार्कर के बारे में पूछा जाता है। वो सिगरेट पीते हुए बड़े इत्मीनान से आराम से कहता है कि वो कोरी को नहीं जानता था, ना ही वो उसका कातिल था। डिटेक्टिव्स रॉबर्ट से उसका DNA मांगते हैं। वो साफ इनकार कर देता है। अफसरान को अंदाजा था कि रॉबर्ट अपना DNA आसानी से नहीं देगा, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को इंटरोगेशन रूम में सिगरेट पीने की इजाज़त दे दी थी और एक एस्ट्रे भी वहां रख दिया था। वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में रख कर भूल जाए, क्योंकि सिगरेट होठों को छूती है, उस पर थूक लग जाता है और थूक के जरिए DNA मिल सकता था। रॉबर्ट सिगरेट के बाद सिगरेट पीता रहा, लेकिन वो सिगरेट को बुझाकर टोटा अपनी जेब में रखता गया। डिटेक्टिव्स ने उसके सामने पानी की बोतल रखी, लेकिन उसने बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर में उन्होंने उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके डॉक्यूमेंट को लिफाफे में रखकर बंद करने को कहा। रॉबर्ट ने सिग्नेचर की, डॉक्यूमेंट को लिफाफे में डाला, लेकिन थूक लगाकर उसे बंद करने से इनकार कर दिया। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, अगर कुछ पूछने और कहने को बाकी नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। पुलिस ने उसे जाने दिया और सर्वेलेंस ऑपरेशन शुरू कर दी। जहाँ भी रॉबर्ट जाता, खुफिया इन्वेस्टिगेटर्स की टीम उसका पीछा करती रहती। रॉबर्ट के बॉस जॉन गरूफी ने डिटेक्टिव्स को बताया कि रॉबर्ट बहुत चौकन्ना रहने लगा था। वो इतना पैरानॉइड हो गया था कि वो रोज़ाना अपनी सिगरेट का कचरा, अपने खाने पीने के बर्तन, नैपकिन्स वगैरह भी सब गार्बेज बैग में डालकर अपने घर ले जाने लगा था। 2 दिन तक डिटेक्टिव्स ने उसका पीछा किया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। तीसरे दिन बारिश हो रही थी। रॉबर्ट ने कंप्यूटर की दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट पी, टोटा अपनी जेब में महफूज कर लिया और अंदर जाने से पहले उसने जमीन पर थूका। उसका थूक बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। जब रॉबर्ट दुकान में चला गया, डिटेक्टिव ने थूक का सैंपल उठा लिया और फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। रॉबर्ट डेनी का DNA कोरी के अपार्टमेंट में पाए जाने वाले DNA का परफेक्ट मैच था। 28 नवंबर 2000 रॉबर्ट डेनी को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2005 डुवाल काउंटी कोर्ट में रॉबर्ट का मुकदमा शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर मेलिसा नेल्सन का कहना था कि रॉबर्ट डेनी कोरी पार्कर को दूर दूर से देखता था, उसका दीवाना हो गया था। कोरी ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और रॉबर्ट सामने वाली बिल्डिंग की पहली मंजिल पर। वो रात में बैठकर घंटों तक कोरी को खिड़की से देखता था, बालकनी में बैठकर उसे ताड़ता था। कई बार कोरी की गैर मौजूदगी में उसके अपार्टमेंट में घुसकर उसने कमरों की तलाशी भी ली थी। उस रात जब कोरी देर से लौटी थी, रॉबर्ट उसका घर में पहले से इंतजार कर रहा था। उसने हाथ में दस्ताने पहने हुए थे और किचन से बुचर नाइफ ले ली थी। कोरी के सोने के बाद रॉबर्ट उसके बिस्तर में कूद गया और उसे रेप करने की कोशिश की, लेकिन कोरी ने खूब मुकाबला किया। इस बात पर रॉबर्ट को गुस्सा आ गया और उसने हमला शुरू कर दिया। हाथापाई के दौरान कोरी ने रॉबर्ट के बाल नोच लिए। रॉबर्ट का गोल्डन लाइटर जमीन पर गिर गया। क्योंकि रॉबर्ट के हाथों पर खून था, चाकू उसके गीले हाथों से फिसल गया और उसका हाथ कट गया। यही वजह थी कि अपार्टमेंट में रॉबर्ट का खून मौजूद था। रॉबर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड ने अदालत में गवाही दी कि रॉबर्ट के पास ऐसा ही गोल्डन जिप्पो लाइटर हुआ करता था। रॉबर्ट डेनी को कत्ल का मुजरिम पाया गया। 9 मई 2005 जूरी ने सिर्फ 45 मिनट में अपना फैसला सुना दिया। उसे उम्र कैद की सजा मिली। अदालत में कोरी के बाप ब्रूस पार्कर को रॉबर्ट डेनी से मुखातिब होने का मौका दिया गया। उसने कहा, जब तुमने कोरी को कत्ल किया
तो तुमने साथ में बहुत सारे लोगों को मार डाला। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था जब तुमने उसके घर में घुसकर उसे छन्नी कर दिया था। तुम्हारे जुर्म की सिर्फ एक ही वजाहत है, तुम एक मॉन्स्टर हो। दोस्तों, ये थी कोरी पार्कर की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना